साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना जाता है। रस काव्य की आत्मा है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने रसों का निरूपण अपने नाट्य शास्त्र में किया था। रस 9 प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न भावों को दर्शाया जाता है। एक्सपो 2022 की श्रृंखला में इन नवरसों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से 8वीं डी कक्षा के विद्यार्थियों ने बड़ी खूबसूरती से अभिनीत किया है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर मैडम श्रीमती अनीता वढेरा जी, प्रिंसिपल मैडम श्रीमती सीमा अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करती हूँ। Dear parents and my dear students, a very good morning to all of you. It is with immense joy and pride that we organize Expo 2022, a motley of creativity, talent, knowledge, and 21st century skills. This annual event is of utmost significance for it offers students an opportunity to depict diversified themes after exploring, investigating, analyzing, problem solving, designing, and editing. Collaborative nature of Expo not only enhances their skill in team building and leadership, but also reinforces the social and emotional learning. Dear parents, we view our world with a global perspective now. The aim of this project is to give learners an environment which stimulates intrinsic curiosity, inquiry based, and experiential learning in hope to transform them into individuals who become successful professionals, civic leaders, and informed citizens of the global society. Dear children, I have complete faith that this year too, Expo has given you a brilliant platform to unleash your hidden potential and fly with broader wings. I hope you have also learned to understand, appreciate, and reciprocate the global issues and are progressing towards becoming an active participant in addressing and resolving them. Here, I would like to share a poem. Not everyone gets it. Not everyone gets it right the first time. Success is unfortunately a wicked, difficult climb. However, for those who just don't lose hope, success will throw down a life saving rope. Work hard, work smart, and you will succeed. Don't follow the rest of the world, take lead. All my best wishes I send to my dear students. I hope you keep getting successful till the end. I would like to congratulate Principal Seema Agarwal, the proud parents, supervisory heads, class coordinators, and the team of most hardworking teachers and sincere students on the accomplishment of this sterling event. I look forward to witnessing the enthralling and gripping presentations by my dear students. Thank you, dear children, and all the best. May God bless you always. A very pleasant good morning to dear parents and my dear students. Expo is one of the most popular and sought after annual events of the school as it taps talents and provides to the children an opportunity to explore their potential to the fullest. Expo 2022 focuses upon bringing a new level of innovation and designing. The varied themes covered provide the students a chance to research, analyze, think critically and creatively. The preparation and presentation shall allow the learners to engage in fruitful collaboration and experiential learning. Dear parents, if we are to prepare students for success in life, we need to prepare them for a project-based world. Expo connects students to the world beyond the classroom and makes them ready to accept
and meet challenges in a way that mirrors what professionals do every day. I hope you will appreciate the school's endeavor in developing children into confident individuals equipped with 21st century skill. Dear students, I'm sure that like every year, this year too, you have participated with utmost zeal and enthusiasm. I'm certain that you have put your best foot forward to showcase your themes and in the process enhance your creativity, interpersonal skills, and IT skills and boosted your confidence. As someone rightly said, and I quote, I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship. I would like to extend my sincere gratitude to you, dear parents, for your motivation through your constant support and cooperation. I would like to congratulate the supervisory in charges, teacher coordinators, and the entire team of diligent and devoted teachers for their tireless efforts to put up a grand event. I'm eagerly waiting to witness some marvelous and inspiring presentations by my wonderful children. Thank you. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कनिष्का और संयम को मंच का संचालन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटर मैम मिसेस वडेरा जी, प्रधानाचार्य जी, निकायक मंडल, अध्यापकगण एवं सहपाठी, आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थी जीवन का कैनवास बड़े नवरत्न। कनिष्का, आज का कार्यक्रम तो कुछ खास होने वाला है। जब नवरस की हो रही है बात, तो क्या कुछ खाने से संबंधित होने वाला है आज? अरे नहीं सरिया, नवरस खाने से संबंधित नहीं है, ये तो विभिन्न भाव यानी कि मूड से संबंधित है। तो चलो कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं गणपति वंदना, जिसे प्रस्तुत करने जा रही है साक्षी एवं खुशी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि रसो वह स अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है जो इस सृष्टि के कण कण में बह रहा है। चांदनी में तरलता, सागर की गहराई, फूलों की खुशबू ने सांस सांस महकाई, रसानुभूति लाए भावों की तरुणाई। पानी, तरल, द्रव के रूप में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। रस 6 प्रकार की है: कटु, अम्ल, मधुर, रवन, तिक्त और कषाय। स्वाद, रुचि और इच्छा के अनुसार हम रसों का प्रयोग करते हैं। भरत मुनि ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भक्ति रस, अद्भुत रस तथा शांत रस नाम से इन भेदों को स्पष्ट उल्लेख किया है और इन्हीं 9 रसों की संज्ञा है नवरस। तो आइए इन रसों की करते हैं रसानुभूति। प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का है ताज, चाहे वो नाट्य या कला की बात। इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, करता है ये प्रेम की वृष्टि। ये है रसों का राजा श्रृंगार रस, जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है। ये प्रेम कला का सौंदर्य का प्रतीक है। आम शब्दों में इसका भारी सजावट से लिया गया है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य भी समा है। ऋतुओं का आगमन, गहनों की खनक, रिश्तों में प्रेम की नाजुक डोर,
व मधुर बोली शामिल है। ये रस केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि देवी देवताओं के जीवन से संबंध करता है। रात सुबह की किरणों की दीवानी न होती, क्या अर्थ होता प्रेम का? अगर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी न होती। नारी की बिनिया में पूरी पृथ्वी है समाई, पायल वह कंगन की छन छन जैसे बजती हो शहनाई। कमर बंधा उसका पारिवारिक बंधन का प्रतीक, काजल की गहराई जीवन को बनाती है सटीक। कानों के झुमके जीवन धारा को दर्शाते, मेहंदी व गजरे की महक जीवन में शालीनता लाते। मोह प्रेम और सुंदरता के भाव यह रस जगाएं, नारी रूप को अति मनोरम यह रस ही बनाए। कृष्ण राधिका की लीलाएं राज मधुर दर्शाए, श्री संपूर्ण है जिस रस से वह श्रृंगार रस कहलाए। श्रृंगार रस कहलाए, श्रृंगार रस कहलाए। अरे वाह कनिष्का, कितना सुंदर नृत्य और अभिव्यक्ति। चलो अब देखते हैं अगला रस जो कि है वीर रस। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, नदियों की कहानी किनारों ने लिखी। वीर किसी कदम के मोहताज नहीं, क्योंकि वीरों की कहानी तलवारों ने लिखी। मुझ पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की, मैं तत्पर हूँ दोहराने को फिर कथा भी अभियानों की। जिसने भी मुझे चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा, संगीनों से मैं लेता हूँ प्रतिशोध सदा, प्रतिशोध सदा। मुझ पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की, मैं तत्पर हूँ दोहराने को फिर कथा भी अभियानों की। कृष्ण की पुकार पे जो धर्म युद्ध कर गया, भगवत का सार सुन रणभूमि पर उतर गया। जिस महाबली के धनुष बाण की तनकार से हिल गया ब्रह्मांड, जिस रणविजय के प्रहार से। आचार्य भरत मुनि के अनुसार हिंदी साहित्य में 9 रस ये वीरता, बहादुरी और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। इन रस के प्रमुख तत्व हैं गुस्सा, अपराधी को सजा, वीरता का प्रदर्शन, उत्साह और ध्यान केंद्रित करना। इसके स्रोत है हिम्मत, दृढ़ता और स्थिर मस्तिष्क। ये केवल युद्ध की रणभूमि में नहीं बल्कि आम इंसान की दिनचर्या में भी नजर आता है। इसके द्वारा ही प्रतिदिन जीवन में घटने वाली चुनौतियों का सामना डट कर सकते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, इन शब्दों को आज भी याद करते हैं। देशराज भरत सिंह वह देशभक्त जो कह गए, इनकलाब जिंदाबाद। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। क्या बात है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी रगों में भी वीर रस बहने लगा है। स्वयं तुम तो बहुत ज्यादा रोमांचित हो रहे हो। अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे और चुपचाप देखते हैं बाकी के रस। नफरत को अपने दिल से मिटाए, मिलकर दुनिया का रूप सजाए। आओ दिलों को दिलों से मिलाए, शांति का रास्ता हम अपनाए। ये जो पावन धरती है ये नफरत से डरती है। इस धरती माँ के दुखों को मिटाए, शांति का रास्ता हम अपनाए। तोड़े मजहब की दीवार, करे ना भाषा पर टकरार। सबके भले की मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाए। किसी को भी सताए नहीं, जख्मों पे सबके मरहम लगाए। शांत रस इस सृष्टि की उत्पत्ति से विद्यमान है। ये ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक ऐसा रस है जो शांति का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी व ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक योग साधना करते थे, क्योंकि ये अनंत काल तक पहुंचने का एक मार्ग है।
इसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन व बुद्धि का पूर्ण रूप से स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि ये उच्च चेतना की एक ऐसी स्थिति है जो योग का अंतिम चरण है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद शांति का अनुभव किया। युद्ध भूमि में चारों तरफ बिछी लाशों व खून से लथपथ धरती को देखकर उनका मन पश्चाताप और ग्लानि से भर गया। उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन आया। वो बौद्ध धर्म अपनाने की तरफ प्रेरित हुए। इसलिए कहते हैं लोगों को सारे व्यर्थ के झगड़े छोड़कर शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। खुशियों के स्रोत का उद्गम बता दे जो, जीवन में आनंद का संगम करा दे जो, उस परम आत्मा से मिलन करा दे जो। भक्ति है वो, भक्ति है भक्ति। मनुष्य से पत्थर में भी पाता है तो हवा में भी, यह हर आत्मा में रहती है। बस आवश्यकता है तो इसे महसूस करनी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही राम है घट घट दुनिया देखेगा। विश्वास करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम उस दुनिया में भगवान तो हमारे ही अंदर रहता है, जिसे हम भक्ति द्वारा पा सकते हैं। भक्ति का प्रभाव चारों दिशाओं में फैला है। भक्ति की राह पर चलकर श्री मीरा ने श्री कृष्ण को पाया, पार्वती ने शिव को पाया, हनुमान ने श्री राम को पाया और रावण जैसे अहंकारी राजा ने भी आराधना करके महादेव को वरदान देने पर मजबूर कर दिया। भक्ति हर जगह मौजूद है, बस आवश्यकता है तो इसे पाने की इच्छा है। मनुष्य का इसे पाने का एक कदम उसे भगवान के करीब पहुंचा देता है और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। एक कुटिल हैवान की तरह लगा जाता है आग प्यार के रिश्तों में, बांट देता है दिलों को किस्तों में, झोंक देता है खुशियों को अंगारों में, कैद कर लेता है प्यार को अदृश्य दीवारों में। एक कुटिल हैवान की तरह, एक कुटिल हैवान की तरह। सामान्यतः रौद्र रस को एक नकारात्मक सोच माना जाता है, क्योंकि इससे प्राणियों का मन ही नहीं अपितु सारा वातावरण ही दूषित हो जाता है। ये लोगों में समाया अहंकार का प्रतिरूप है। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं व उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वह उन्हें पूरा करने के लिए किसी का सहारा लेता है। बुराई, कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्रोध को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार न कर इसका कारण बाहर ढूंढता है। वह अन्य को अपने क्रोध के लिए दोषी ठहराता है। प्रकृति आज जो विनाशकारी आपदाओं के रूप में अपना क्रोध दर्शा रही है, यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ी करता चला जाएगा, जिसके भयंकर परिणाम की कल्पना को हम देख ही चुके हैं। कोरोना काल उसका सजीव उदाहरण है। अत्याचारी धर्म विमुख दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव मां दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब, परशुराम के रौद्र रूप में भरे हुए शापों में यही विद्यमान है पड़ेगा हरि सब रूपों में। भीषण हो हृदय में जब हावी हो आए, कारण उसका जो है वो रौद्र रस कहलाए, रौद्र रस कहलाए। जल प्रवाह भावितस्थले कलेवलं विलंबितं भुजंगमंगमालिका
जीवन के अनुभव में होते हैं कई रस संचार। दुख, संताप, पीड़ा, करुण रस है इन सब का आधार। जब हृदय में पीड़ा, वेदना, निराशा आदि भाव उद्वेलित होते हैं तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी छोटे बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर उपजी करुणा, पति या पत्नी से वियोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटे की विदाई का दर्द, इन सभी स्थितियों में करुण रस विद्यमान है। शकुंतला की विदाई में कनव ऋषि के आश्रम में छाया विषाद भी करुण रस को ही दर्शाता है। यदि करुण रस से प्रभावित उस समाज की बात की जाए तो आज समाज मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुका है। जिस समाज में नारी का सम्मान किया जाता था, आज उसी समाज में उसे जीने के हक से वंचित किया जा रहा है। कहीं गर्भ में ही कन्याओं की हत्या की जा रही है तो कहीं दहेज रूपी दानव नारी जाति को निगले जा रहा है। इस उपेक्षित नारी के हृदय में उठने वाली संताप में उसके करुण कंदन में करुण रस ही सिसक रहा है। करुण रस है करुणा वाहक, शोक विलाप का यह संवाहक। करुण रस उदित होता जब विवश मानव हृदय रोता तब। महात्मा बुद्ध को जिस रस ने शोकमय बनाया, कृष्ण वियोग में माँ यशोदा ने अश्रु सागर बरसाया। हृदय विदारक मम स्पर्शी स्थितियों में यह रस ही रहता है। शोक, संताप, दुख, विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं। मेरे आंगन की नन्ही कली, आज तू ससुराल चली। कलेजे का टुकड़ा सौंपना नहीं था आसान, तुझे रुखसत करना है समाज का विधान। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। सोने सी चमकती किरणें सारा संसार जगमग कर जाए। ये कलकल करती नदियाँ धरती की गोद में लहर लहर जाए। ये रंग बिरंगे फूल तो देखो, धरती का आंगन महक महक जाए। फर फर करती तितलियाँ हर ओर फूल फूल डाली डाली मंडराए। एक और पर्वत राज है खड़ा, दूसरी ओर अथाह समुद्र लहर लहर जाए। अद्भुत प्रकृति हर ओर रंग अपना फैलाए। अरे अरे, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कुछ समझे? ये अद्भुत रस है, यानी रहस्यमय। नाट्य शास्त्र के अनुसार अद्भुत रस भावुकता, विस्मय, दिव्य दर्शन, अनोखापन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अपने चारों ओर अद्भुत रस ही पाएंगे। रंग बिरंगी दुनिया, सुंदर महकते फूल और यह पेड़ पौधे, उन पर चहकते ये परिंदे, पहाड़, नदियाँ बरबस मन को मोह लेती हैं। क्या आपने कभी रंग बिरंगी तितलियों को, सुंदर महकते फूलों को और हरे भरे पेड़ पौधों को ही क्यों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को कभी ध्यान से देखा है? जिन प्रश्नों से खुद अलंभिक मनुष्य रहता है, सुंदर सृष्टि की महिमा अलौकिक है। कौन निश्चिता है इसका, इस तथ्य के कई आलोचक हैं। जन्म पूर्व और मृत्यु पश्चात मनुष्य किस लोक में रहता है, इन्हीं विस्तृत विचारों से अद्भुत रस बहता है, अद्भुत रस बहता है।
है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है डर, जो सब चिंताएं उत्पन्न करता है। भय एक अप्रिय अनुभव है, जिस खतरे की पूर्व अनुमान में उत्पन्न होता है। जो भय हावी होता है, पसीना आने लगता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, दम घुटने लगता है, बेहोशी और बेचैनी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है, इंसान अपने सुध बुध खो बैठता है, सब कुछ व्यर्थ और निरर्थक लगने लगता है। भूत, पिशाच, नृशंस, मृत्यु, इन सब चेष्टाओं से भय पैदा होता है। डर ने जो डाली बाहें, रात गहरी हो गई, सहमे हुए तारों की रोशनी भी धीमी हो गई। पेड़ों से पत्तों का फड़कना धीरे धीरे कम हुआ, पंछियों ने सपने में भी चहकना कम किया। फूल भी मुरझा गए और रंग भी हल्का पड़ गया। रात की झालर को ओढ़े जिंदगी भी रो गई। डर ने जो डाली बाहें, रात गहरी हो गई, रात गहरी हो गई। फिंजाम ने भी अपनी आंखें ओस से गीली करी, हवा ने भी अपने पैर रोक के आहें भरी। चांद भी आज धुंध से ओझल हुआ, डर की स्थाई जो छलकी, चांदनी भी सो गई। डर ने जो डाली बाहें, रात गहरी हो गई, रात गहरी हो गई। हास्य है अनमोल खजाना, कभी ठहाके कभी मुस्कुराना, क्रोध उदासी डर को मिटाए, यही सबका मन बहलाए। पवित्र हृदय यदि हो तुम्हारा, खुशी का हो हर और नजारा। दुख हो या कोई बड़ा संकट, जल्दी ही मिट जाए हंसकर। जीवन की परेशानियां पौधों में शूल, वातावरण को झुमकाए, हास्य है यहाँ एक फूल। जी हाँ, यही है हास्य रस। अधूरेपन व असंतोष से घिरी दुनिया में यदि आप हास्य का हाथ थामोगे तो सभी मुश्किलें आसान लगेगी तथा आप तनाव मुक्त हो जाओगे। जरा सोचिए, अरे जरा सोचिए तो सही, हास्य बिना आपका जीवन कैसा होगा। जैसे समोसे के बिना आलू, के चटनी के बिना चाट, पेड़ बिना पत्तों के और चांद के बिना रात। हंसने के लिए समय और घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस जब मौका मिले तो हंस लेना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अनेक लोगों का निवारण होता है। हर सुलझन को सुलझाने का जादू है हास्य मंत्र में। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यह रस विभिन्न कार्यक्रमों से लेकर दैनिक जीवन तक, पुरानी कथाओं से लेकर फिल्मों तक सभी में शामिल है। हास्य के आते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कुछ देर के लिए सभी लोग अपने दर्द को भूल जाते हैं। वास्तव में हास्य का स्वरूप विस्तृत है। इसके माध्यम से आप वर्तमान जी सकते हैं। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से। श्रीमती अनीता वडेरा जी का और प्रधानाचार्य सीमा अग्रवाल मैम का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें यह मंच उपलब्ध कराया और हम यह कार्यक्रम आयोजित कर पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ इंचार्ज मैडम सीमा शर्मा मैम, ऋतु चौधरी मैम और श्रुति मैम का, जिन्होंने समय समय पर सहयोग किया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्लास टीचर सीमा मनोज मैम का, जिन्होंने अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन से हमें तराशा और निखारा। अंत में धन्यवाद
टीचर्स, जजेस और पेरेंट्स का। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ